So, my dear students, let me shall discuss about the DNA sequencing methods. So, here are the DNA sequencing methods. There are two main type of the methods have in the DNA sequencing. Two main type of the method. So, first one method number one, Sanger method. Sanger's method. Second one method, Gilbert method or high throw sequence method. High throw so my dear students. So my dear students, here the two main types of the methods are there. First one is Sanger method, second one high throughput sequencing method or next generation method. High throughput sequencing method or next generation method. Here the two methods is very important main methods. So some different kinds of the methods are there, but here the two methods is very important methods. So let me shall discuss about the first one method, Sanger's method. Sanger's method. Keep it in your mind, my dear students. Sanger's method. Let us shall discuss you. So first of all, my dear students, we are learning about this method. Which method? Sanger's method. So Sanger method के लिए मैं explain करूँगा. So here the Sanger method. This method also called classical chain termination method. So this method का another name क्या है? Classical chain termination method. So this method का अंदर नेम हो, Sanger's method का अंदर नेम क्या है? Classical chain termination method and also called dideoxynucleotide method. Another one name क्या है? This one method का another one name and also called dideoxynucleotide method. Dideoxynucleotide method. So next one देखिए, this one method के क्या बोलते हैं? Sanger's method is also called as classical chain termination method or dideoxynucleotide method. So this method nucleotide on the primers that would be bind to the denaturation of the DNA molecule. आपको आप लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे. First one here the method में क्या करना? First one वो denature of, for example, this one देखो. So this is a DNA molecule. So this one DNA molecule, double helical structure of the DNA molecule. So here the double helical structure of the DNA molecule by the environmental factor. If the any environmental factor is involving to denaturation of the DNA. So this one denaturation of the DNA. So that मतलब क्या करना है? क्रिस्टल DNA क्या करना है? सेपरेशन हो गया यहाँ पर. So सेपरेशन होने के बाद क्या करना है? यहाँ पर वो पार्ट में क्या कर रहा है ना? So add up to the which one add कर रहा है? Primer. So primer से add कर रहा है. Keep it your mind. This is the primer. So वो प्राइमरी ऐड कर रहे हैं. सो यहाँ पर क्या करना है? वो मेथड में फर्स्ट वन क्या करना है? डीनेचर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल में क्या वो ऐड कर रहे हैं? प्राइमर. सो दैट वुड बी बाइंड टू द primers of the denaturation of the DNA molecule. It will be formed to the. So this denature होने के बाद क्या करना है? जैसे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल. सो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल में क्या करना? प्राइमर ऐड किया. सो प्राइमर ऐड करने के बाद क्या करना? दिस वन फॉर्म टू द डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल. सो कीप इट योर माइंड. सो प्राइमर ऐड करने के बाद वो क्या कर रहा है ना? डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया. आप लोगों को वो आइडेंटिफाई करना चाहिए. सो वो ऐसे करने के लिए क्या इन्वॉल्व कर रहा है ना? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. So DNA polymerase enzyme यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं. So DNA polymerase enzyme is catalyze of the DNA molecule and addition of the DNA molecule. Keep it in your mind.
कैटालाइज मतलब ब्रेकिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल एंड एडिशन मतलब क्या करना प्राइमर से ऐड कर रहे हैं ऐड करके क्या करना लेंथ एलांगेशन कर रहे हैं इसलिए क्या करना डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड बाय दिस which method है सैंकर मेथड में पहले वो यूज कर रहे हैं वो पॉइंट आप लोगों को लिखाना चाहिए एंड नेक्स्ट वन क्या करना दिस वन बाइंडिंग करने के बाद क्या करना वो बाइंडिंग को कैटलाइज करने के लिए और वो करने के लिए क्या करना करा कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्विंग हो गया so there are a covalent bond would be 3 or 4 for this between 3 carbon atom molecule of the deoxyribose sugar in one nucleotide and fifth carbon atom of the next end so यहाँ पर क्या कर रहा है ना कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व कर रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर रहा है यहाँ पर इन्वॉल्व करके वो फॉर्मेशन कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं लेट मी शो टू द इमेज वो इमेज शो करेंगे आप लोग इमेज शो करेंगे तो इजी हो गया so we are showing about this image my dear students so this one DNA sequence में क्या करना showing about this image so this one guanine and this one adenine so guanine plus adenine so guanine plus adenine मतलब क्या करना guanine के साथ adenine those are the pyrimids so guanine के साथ adenine क्या कर रहा है ना मिलके फॉर्म कर रहा है guanine adenine फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ वो चेन फॉर्मेशन कर रहा है सो वो फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना है कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहे हैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करिए सो यहाँ पर देखिए एडेनाइन में क्या करना 1 2 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर देयर सो guanine ट्राइफॉस्फेट सॉरी एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट सो यहाँ पे एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट guanine के साथ क्या कर रहा है ना बाइंडिंग कर रहा है कीप में तो यहाँ पर बाइंडिंग करेंगे तो क्या फॉर्म कर रहे हैं ना यहाँ पर देखो सो दिस वन है सो दिस वन क्या कर रहे हैं दिस इज guanine सो दिस वन adenine तो वो दोनों क्या करना है बाइंडिंग कर रहे हैं कैसे बाइंडिंग कर रहे हैं ना यहाँ पर guanine adenine के साथ बाइंडिंग कर रहे हैं तो guanine adenine के साथ बाइंडिंग करने के लिए क्या फॉर्म क्या यूज कर रहे हैं ना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यूज कर रहे हैं सो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ पर यूज कर रहे हैं देखो यहाँ पर so for example देखो this is the first carbon second carbon third carbon so third carbon मतलब 3 primer and so third carbon मतलब 3 primer and is OH molecule of the end so in this OH molecule of the end is binding to form to the phosphodiester bond देखो this is the phosphodiester वो phosphodiester bond से जो molecule में क्या पर first carbon second carbon third carbon fourth carbon so this is the fifth carbon so fifth carbon molecule में ending करेगा मतलब वो 3 primer and to 5 primer and so 3 primer and to 5 primer and में क्या करना बाइंडिंग करना phosphodiester bond so phosphodiester bond बाइंडिंग करके क्या करना है it will form to the guanine plus adenine so guanine adenine बाइंडिंग कर रहा है मिलके फॉर्म कर रहा है guanine adenine phosphodiester bond so that मतलब क्या करना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में यहाँ पर क्या करना guanine adenine फॉर्म करके क्या करना वो डीएनए फॉर्मेशन कर रहे हैं सो अबाउट दिस इमेज आप लोगों को देखिए सो अबाउट दिस इमेज शोइंग दिस इमेज फिलिंग द फॉर्मेशन दैट मतलब क्या करना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन adenine टू guanine सो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ पर है ना मिल गया एडेनाइन guanine टू एडेनाइन में वो मिल गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कीप इट योर में सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड उसका साथ तो मिलता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एडेनाइन टू guanine द न्यूक्लियोटाइड थ्रू ये कंडेंसेशन रिएक्शन इस रिएक्शन ऑर्डर में बोल दिया कंडेंसेशन रिएक्शन क्या कर रहा है ना वो दोनों क्या करना मिलकर फॉर्म कर रहे हैं सो नेक्स्ट वन पॉइंट क्या करना है इन दिस रिएक्शन कैन बी बाइंड इन दिस रिएक्शन कैन बाइंड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर है ना दिस वन ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में वो बाइंडिंग कर रहे हैं सो दिस वन इज बाइंडिंग टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप कीप इट योर माइंड एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या करना ना द सीक्वेंसिंग reaction mixtures burning would be have a small proportion of the modification nucleotides that cannot through this covalent bond due to the absence of the reactive hydroxyl group gives rise to the term of the dideoxyribonucleic acid bond.
सो दिस वन वो सीक्वेंसिंग डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए क्या कर रहा है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होना चाहिए. इफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेकिंग हो गए तो क्या करना है, डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूज कर रहा है. सो डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड यूज करके क्या करना है, कैसे कर रहे हैं, लेट मी डिस्कस यू. दे डू नॉट हैव 3 by 2 oxygen molecule atom when the compared to the corresponding ribonucleotides. This would be termed as the DNA polymerase enzyme. So keep it in your mind. So those are the relation होना चाहिए my dear students. And the next one क्या करना, in this earlier attempt of this using Sanger's method. So जब the Sanger's method पहले use किया, पहले यूज किया, वो यूज करना टाइम में क्या करना, द सैंगर्स मॉलिक्यूल, द डीएनए मॉलिक्यूल वाज फर्स्ट एम्प्लीफाइड. सो डीएनए मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, फर्स्ट एम्प्लीफाइज किया, एम्प्लीफाइज. सो डीएनए मॉलिक्यूल वाज फर्स्ट एम्प्लीफाइड बाय द यूजिंग ऑफ द सैंगर्स मेथड. माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ऑब्जर्व करिए. सो एम्प्लीफाइज करने के बाद क्या करना है, वो करने के लिए क्या करना है, यूजिंग द लेबल्ड प्राइमर. सो लेबल्ड प्राइमर यूज कर रहा है. लेबल्ड प्राइमर कहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, 4 टेस्ट ट्यूब मिल के यूज कर रहे हैं. 4 टेस्ट ट्यूब्स यूज किया, वो 4 टेस्ट ट्यूब में क्या करना, वो वाला यूज कर रहे हैं. लेकिन विल डिस्कस कैसे यूज कर रहे हैं, इमेज आपका नोट में लिखना चाहिए. तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इमेज क्या कर रहे हैं यहाँ पर. सो दिस इज ए guanine, दिस इज एडेनाइन. सो दिस इज guanine एंड दिस इज एडेनाइन. वो guanine एडेनाइन कैसे फॉर्म कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं. सो कोवलेंट बॉन्ड किसके साथ फॉर्म कर रहा है ना, 3 प्राइमर एंड में फॉर्म कर रहा है, दैट मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में फॉर्म कर रहा है. सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में फॉर्म करके क्या करना है, दिस वन फॉर्म कर रहा है. तो फॉर्म करेंगे क्या, तो वो उसके साथ क्या करना ना, वो प्राइमर बाइंडिंग कर रहा है. सो प्राइमर बाइंडिंग क्या करना नहीं तो क्या करना ना, विच वन का प्राइमर बाइंडिंग कर रहा है, डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फॉर्म कर रहा है, आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे. वो यूज करके क्या करना है, सैंगर्स फर्स्ट डीएनए क्या करना है, सीक्वेंसिंग यूज किया. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो डीएनए सीक्वेंसिंग में सैंगर क्या कर रहा है ना, सो दिस वन 4 नाइट्रोजन बेस पेयर क्या करना है, ही इज यूज्ड टू द 4 different kinds of the test tubes. So 4 different kinds of the test tubes यूज कर रहा है. मैं एक्सप्लेन करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स. My dear students, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन बेस पेयर के लिए 4 टेस्ट ट्यूब्स यूज कर रहे हैं. we discuss you one by one. So first of all देखते हैं, is used to 4 टेस्ट ट्यूब. So 4 टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं हम, वो देखो my dear students. So first one is separated to the amplification to the DNA molecule to use it to the 4 test tube. So first one, this one देखो, this is a 1 test tube, and this one देखो, this is a 1 test tube, and this one देखो, this is a 1 test tube, and this one देखो, this is a 1 test tube. So यहाँ पर 4 test tubes are there. So 4 test tube में क्या करना, सैंगर्स क्या यूज किया, एम्प्लीफिकेशन किया. So that one, this one एम्प्लीफिकेशन किया, the denaturation of the DNA molecule. Denaturation of the DNA molecule मतलब सिंगल स्टैंडर्ड DNA molecule. So सिंगल स्टैंडर्ड DNA molecule में क्या मिलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA molecule में, so सिंगल स्टैंडर्ड DNA molecule में क्या मिलता है ना, प्राइमरी ऐड किया. So प्राइमरी ऐड करेगा तो कैसा होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज a सिंगल स्टैंडर्ड DNA molecule. So सिंगल स्टैंडर्ड DNA molecule में प्राइमरी ऐड किया. So that मतलब क्या करना है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, दिस वन वो टेस्ट में क्या करना है, DDATP. So DDATP. So DDATP. So this one प्राइमर में देखो. So this one प्राइमर में देखो. This one प्राइमर में क्या करना है, DDGTP. So this one प्राइमर में देखो. This one प्राइमर में DDCTP. So this one प्राइमर में देखो. This one प्राइमर में DDTP. So DDATP deoxynucleoadenosine triphosphate
Keep it your mind. Dideoxynucleotide, deoxyguanine triphosphate, dideoxycytosine triphosphate, dideoxythiamine triphosphate. Keep it your mind. वो वाले यूज किए, कौन यूज किया ना, सैंगर्स यूज किए। तो सैंगर्स यूज करके तो क्या होगा, यहाँ पर वो चेन हो ट्रांसमिशन कैसे होगा, दैट विल डिस्कस। सो फर्स्ट वन देखो, डी 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 एटीपी एटीपी, सो डी डी एटीपी फॉर्म कर रहे हैं। सो समटाइम्स क्या करना ना, डी जीटीपी जीटीपी फॉर्म कर रहे हैं, डी सीटीपी फॉर्म कर रहे हैं, डी टीटीपी फॉर्म कर रहे हैं, दिस वन। सो दिस वन क्या टेस्ट में क्या करना है, आंसर पेश करेगा तो सो डी डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी एंड डी टीटीपी फॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डी डी जीटीपी, डी सीटीपी एंड डी टीटीपी एंड डी एटीपी। सो दिस वन में वो टेस्ट में फॉर्म कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन टेस्ट देखो, डी डी सीटीपी एंड डी टीटीपी and D ATP and D GTP. So I को फॉर्म कर रहा हूँ वो टेस्ट में। सो नेक्स्ट वन वो टेस्ट में देखो, DD TTP and D ATP and D GTP and D CTP. सो ऐसा फॉर्म कर रहे हैं। सो 4 टेस्ट में क्या करना ना, 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स क्या कर रहा है ना, फॉर्म कर रहा है। सो 4 टेस्ट में आप लोगों को वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो यहाँ पर क्या करना है, दिस वन क्या करना है, चेन ट्रांसमिशन में वो कर रहा है ना, वो फॉर्म कर रहा है चेन टर्मिनेशन। सो चेन टर्मिनेशन, दिस वन चेन टर्मिनेशन जो चेन टर्मिनेशन में फॉर्म करेगा तो क्या करना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स सो फॉर्म कर रहा है। सो विच वन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, चेन टर्मिनेशन न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स वो वाला फॉर्म कर रहा है। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करिए। वो फॉर्म करने के टाइम में देखो, आफ्टर दिस 4 रिएक्शंस वर कंप्लीटेड, सो दिस वन 4 रिएक्शंस वर कंप्लीटेड, द mixture of DNA molecule created by the chain termination. So in this mixture of the DNA molecule, created to the chain termination, would undergoes to the electrophoresis method. So agrojel method आप लोगों को यूज करना चाहिए। सो agrojel method यूज करेगा तो क्या करना, वो चेन टर्मिनेशन में वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या कर रहे हैं ना, सेपरेट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल agrojel method में क्या कर रहा है आप लोगों को, सो दिस वन देखो, agrojel method में देखो, so this is a agrojel plate, electrophoresis के लिए agrojel plate। so agrojel plate में क्या करना है, this is a DNA molecule stand, so this one, so this is a 3 primer, so this is a primer, so 3 primer to primer। so यहाँ पर क्या करना है, DNA molecule A G C T, AGCT DNA molecule है। so AGCT DNA molecule में क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो DNA molecule में देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 तो 0 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, सो वो स्टैंड्स यूज किया। सो यूज करना टाइम में क्या करना, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कितना होगा, लेट वी शैल डिस्कस टू दिस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। सो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में क्या क्या वो होना चाहिए, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में वो डीएनए मॉलिक्यूल में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में क्या क्या वो होना चाहिए ना, ए जी सी टी, ए जी सी टी। नेक्स्ट वन क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में ए जी सी टी के बाद कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में देखो, नेक्स्ट वन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में सी, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में देखो
CA, CCA. So this one complementary sequence है, वो complementary sequence आपका चाहिए, वो complementary sequence आपका चाहिए, वो complementary sequence यहाँ पर क्या करना, मिक्सचराइजेशन कर रहे हैं. So मिक्सचराइजेशन करेंगे तो क्या करना है, टर्मिनाइजेशन ऑफ दिस फर्स्ट वन टेस्ट ट्यूब का टर्मिनाइजेशन, सेकंड वन टेस्ट ट्यूब का टर्मिनेशन, थर्ड वन टेस्ट ट्यूब का टर्मिनेशन, फोर्थ वन टेस्ट ट्यूब का टर्मिनेशन. वो टर्मिनेशन सीक्वेंस कहाँ पर रखा दिया, एग्रोजल में रखा दिया. सो एग्रोजल में रखा देंगे तो क्या करना आप लोगों का, वो क्या चाहिए, A वो क्या चाहिए, A में फर्स्ट वन देखो आप लोगों को क्या देखना चाहिए ना, फर्स्ट वन A का साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और G का साथ कितना प्लेस में वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है. सो A का साथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, G का साथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है. आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कंफ्यूज मत करिए. सो देखिए, सो फर्स्ट वन यहाँ पर पोजीशन देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7. सो फर्स्ट वन पोजीशन में, सो दिस वन एडेनाइन है, और नेक्स्ट वन क्या करना, सेवंथ पोजीशन में एडेनाइन, और नेक्स्ट वन ग्वानिन क्या करना, कहाँ पर है ना, सेकंड पोजीशन में ग्वानिन है. सो यहाँ पर देखो, सो ग्वानिन. सो नेक्स्ट वन क्या करना, साइटोसिन कहाँ पर है ना, थर्ड पोजीशन में साइटोसिन है, और नेक्स्ट वन थायमिन फोर्थ पोजीशन में, और नेक्स्ट वन क्या करना ना, साइटोसिन फिफ्थ पोजीशन में, और नेक्स्ट वन क्या करना, सिक्स्थ पोजीशन में, और नेक्स्ट वन एडेनाइन सेवंथ पोजीशन में. आप लोगों को वो लिखना चाहिए. सो दिस इज एग्रोजल. सो एग्रोजल में क्या करना, वो वाला मिक्सचराइजेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट करने के लिए एग्रोजल यूज करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस एग्रोजल. सो यहाँ पर क्या करना, ये को डिनेचुरेशन डीएनए कहाँ पर रखा दिया, टेस्ट ट्यूब में रखा दिया, एम्प्लीफाइज किया. एम्प्लीफाइज करने के लिए क्या करना, टर्मिनाइजेशन ऑफ द डीएनए सेपरेट कर रहे हैं. सो यहाँ पर एटीपी सेपरेट कर रहे हैं, जीटीपी सेपरेट कर रहे हैं, सीटीपी सेपरेट कर रहे हैं, टीटीपी सेपरेट कर रहे हैं. वो सेपरेशन का डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ पर जाकर दिया, वो सेपरेशन का डीएनए यहाँ पर मिक्सचराइजेशन है, वो सभी यहाँ पर है. यहाँ पर सेम टू सेम सभी यहाँ पर है, सेम टू सेम यहाँ पर सभी है, सेम टू सेम यहाँ पर सभी है. तो सभी होगा, वो वाला क्या करना, वो टेस्ट ट्यूब का डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ पर रखा दिया, एग्रोजल में रखा दो. सो फर्स्ट वन टेस्ट ट्यूब का, सो दिस वन एग्रोजल प्लेट में रख देंगे तो क्या करना, वो डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट कर रहे हैं, एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड सेपरेट कर रहे हैं, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड सेपरेट कर रहे हैं. दैट मतलब क्या करना, वो वाला सेपरेट कर रहा है. सो दैट मतलब आप लोगों को क्या चाहिए, वो वाला चाहिए, वो सेपरेट करके कितना होगा, उसका साथ क्या करना, बाइंडिंग कर रहे हैं, उसका साथ बाइंडिंग कर रहे हैं. वो सेपरेट करके तो और एक क्या करना, उसका साथ बाइंडिंग कर रहे हैं, ऐसे बाइंडिंग करके यूज कर रहे हैं. सो सीक्वेंस ही इजी हो गया, डीएनए सीक्वेंस. नहीं तो क्या करना, डीएनए सीक्वेंस बहुत मुश्किल लगते हैं, आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए. और क्या करना ना, सो दिस मेथड ऑफ द Sankers was determine a small DNA sequences by the terminating DDNTP nucleotides. DDNTP मतलब क्या करना, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, वो मेथड यूज कर रहा है, इजी मेथड होगा. बट क्या कर रहा है यहाँ पर, ही डिड नॉट कंट्रीब्यूटेड लार्ज पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. सो दैट इज ओनली मेजर डिमेरिट, क्या करना, लार्ज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वो यूज नहीं किए, कौन है, सैंगर्स मेथड. इसलिए क्या करना, कोई वो मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया, वो सैंगर्स मेथड के लिए आप लोगों को यूज करना चाहिए. दैट इज सो फर्स्ट वन मेथड सैंगर्स मेथड. और नेक्स्ट लेट आई विल डिस्कस टू द अनदर मेथड क्या कर रहा है ना, गिलबर्ट मेथड और नेक्स्ट वन क्या कर रहा है ना, गिलबर्ट मेथड, और अनदर वन में बोल दिया गिलबर्ट मेथड और हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मेथड और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड. तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग वो डायग्राम करना चाहिए. यहाँ पर तो एग्जामिनेशन में डायग्राम करो, डायग्राम करके यूज करना चाहिए. आप लोगों को आप भी यूज करिए माय डियर स्टूडेंट. सो लेट अस डिस्कस टू द व्हिच वन है हाई सीक्वेंसिंग मेथड में यूज कर रहे हैं. आप लोगों को सभी लिखना चाहिए, हाई सीक्वेंसिंग मेथड.
So देखो my dear students, high अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, समझ नहीं तो बोलिए, प्रॉब्लम नहीं है, तो समझ होना चाहिए, होगा नहीं तो बहुत मुश्किल लगता है। Let us discuss to the another one method. Let us discuss to the another one method. देखो another one method क्या है? Another one method, high throughput sequencing method or next generation method. So this method is also known as which method is also known as R maximum, Allen maximum or Walter Gilbert method. Allen maximum and Walter Gilbert. Walter Gilbert method. So this one method आप लोगों को सिखाना चाहिए. It is very easy method. This first DNA sequencing technique using by the chemical reagents. वो method यूज करने के लिए क्या यूज किया? Chemical reagents. वो मेथड यूज करने के लिए फर्स्ट यूज किया है, केमिकल रिएजेंट्स यूज की. सो नेक्स्ट वन क्या करना ना, द केमिकल रिएजेंट्स. So these are the chemical reagents, that is methionine chemical reagents that uses this method. So that's next one क्या करना, it was developed by the Maxman and Gilbert around 1977. So 1977 वो method develop किया कौन है ना, Gilbert and Walter Gilbert and Allen Maxman वो method develop किया. Next one देखिए, a standard source of the DNA is labeled at one end with 32 phosphate molecule. 32 phosphate molecule. One end में कितना phosphate molecule यूज किए ना, 32 phosphate molecule यूज किए. A source of DNA is labeled one end with 32 phosphate molecule. Keep it your mind. So 32 T. So next one क्या करना है, Allen Maxman and Walter Gilbert developed a method for sequencing single strand DNA molecule. वो डबल स्टैंड नहीं, सिंगल स्टैंड DNA molecule में वो यूज किया by two steps catalytic process involving to the piperidine. So catalytic two steps involving to the involving piperidine and two chemicals that selectively attack purines and pyrimidines. So piperidine में क्या करना है, two chemicals को अटैक किया, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए. प्यूरिन्स एंड pyrimidines में क्या करना, अटैक कर रहे हैं वो केमिकल्स. सो क्या डिस्कस. Purines reacted with the dimethyl sulfate. Purines react with dimethyl sulfate. So chemical use है ना, first one chemical. And pyrimidines react with pyrimidine react with hydrogen. So pyrimidines react with the hydrogen, purines react
रिएक्ट विद द डाइमेथाइल सल्फेट, वो दोनों केमिकल्स यूज किया, वो दोनों केमिकल्स यूज किया, आप लोगों को अंडरस्टैंड करें। इन्हें सच केमिकल्स यूज टू ब्रेक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। यहाँ पर क्या कर रहा है साइंटिस्ट में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड्स इज इन्वॉल्विंग। यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, ब्रेकिंग कर रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब क्या करना है, प्यूरिन से पिरामिडेंस। सो प्यूरिन से पिरामिडेंस इज बाइंडिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज बाइंडिंग टू द प्यूरिन एंड पिरामिडेंस। सो वहां पर कैसे बाइंडिंग किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाइंडिंग किया, तो फास्फेट के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाइंडिंग किया वहां पर सैंगर्स मेथड में। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करना ना, बाइंडिंग कर रहे हैं, वो वाला क्या करना, ब्रेकिंग करने के लिए क्यों क्या यूज किया है, डाइमेथाइल सल्फेट एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजाइमो यूज कर रहे हैं। आप लोगों को वो वाला अंडरस्टैंडिंग करिए। द piperidine catalyzed are cleavage of the phosphodiester bonds. So यहाँ पर देखो, this one हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंडिंग करने के लिए वो दोनों यूज किए, बट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बाइंडिंग करने के क्लीवेज करने के लिए पाइपरडिन। सो पाइपरडिन यूज किया, इट इज breaking of phosphodiester bond, सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या यूज किया, पाइपरडिन यूज किया, और प्यूरिन से पिरामिड से ब्रेक करने के लिए क्या करना है, डाइमेथाइल सल्फेट एंड हाइड्रोमाइड यूज किया। आप लोगों को वो वाला अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वन क्या करना, मोरेवर। सो मोरेवर द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मतलब डाइमेथाइल सल्फेट। सो मोरेवर डीएस मॉलिक्यूल, शॉर्टकट में डीएस मॉलिक्यूल, डीएस मतलब क्या करना है, डाइमेथाइल सल्फेट। सो डीएस मॉलिक्यूल, द डीएस मॉलिक्यूल मोरेवर the DSA molecule and piperidine alone selectively cleavage, so cleavage guanine, so guanine nucleotides, but it is DSA molecule क्या करना, piperidine is piperidine in the formic acid cleavage to the guanine and adenine. So this one cleavage करने के लिए क्या यूज किया, फॉर्मिक एसिड। सो फॉर्मिक एसिड जिस केमिकल है, पाइपरडिन केमिकल, पाइपरडिन। सो पाइपरडिन केमिकल यूज करके क्या करना है, दिस वन ब्रेकिंग कर रहे हैं। सो ब्रेकिंग करने के लिए वो वाला यूज किया, फॉर्मिक एसिड यूज किया। सो गुआनिनो एंड एडेनिन। सो गुआनिनो एडेनिन क्या होगा, प्यूरिन्स, और पिरामिडेंस क्या करना, थायमिन एंड साइटोसिन। सो थायमिन एंड साइटोसिन पिरामिडेंस है। सो वो प्यूरिन्स को क्लीवेज करने के लिए क्या यूज किया, फॉर्मिक एसिड